दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं का मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस बमस्टेड की। इट्स जस्ट 5 वीक्स अवे फ्रॉम द ओलंपिया। क्रिस होपफुली मेरे ख्याल से वो फिर से क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया बनेंगे और अब देखते हैं कि वो 5 वीक्स आउट उनकी डाइट रहती क्या है। द बेस्ट पार्ट अबाउट यूट्यूब या करंट जो सारा सोशल मीडिया सिस्टम ये है कि आप दुनिया भर में देख सकते हो जो चैंपियन लोग हैं वो करते क्या है, क्या चीज होती है। तो लेट्स सी कि व्हाट वी कैन टेक अवे फ्रॉम इट, क्योंकि आई नो क्रिस बमस्टेड के बहुत सारे फैंस हैं इंडिया में, विल कॉपी व्हाटएवर इज डूइंग। तो देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें ये कैसे हो सकती हैं। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट इशू है, गट का इशू, आईबीएस है, आईबीडी है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस नीचे नंबर्स पे। तो आइए शुरू करते हैं। We are officially 5.5 weeks out of the Olympia and time to get shredded. So I'm going to be taking you through everything I'm eating in a day right now. It's pretty consistent, but it's been a while since I've done it, so I can finally say these won't be as boring as typical. But yeah, I'm really hungry right now. That clock is wrong. It's actually 9:45, but I still normally like to eat at 9, so I'm just going to get through this. Breakfast consists of some oats, some eggs, and some protein, which I like to turn into the good old CBum protein pancakes because they are delicious. But I have 90 grams of oats. I like to put them in the smaller thing here, and then I blend them and they become more like an oat flour, and then they become pancakes better. So first step. You take the bigger blender, and then I put in eggs, egg whites, and the secret to the good pancakes, pumpkin. Good source of fiber too. That's it. Put it in. All right, so egg whites, I do around 210 to 220 grams. Egg whites I can go a little bit over because there's literally 25 calories for 46 grams. And then I do one whole egg. Just drop that in there. What are we looking at? Tastes like blue. It's really organic thing. The Easter egg. Next step, put this in. By the way, pro tip when you're making these pancakes, if you make these pancakes, turn your burners on to begin with because you want them hot, not cool when they start. They want to be like sizzling hot. You want to cook these fast, otherwise they dry out faster. I put in the eggs, and I put my oats in here. Try not to spill them everywhere. Precious carbs. Vanilla protein all day, every day. I take the destroyed ones so that you guys can get the beautiful bottles. I go to the warehouse and take these ones. But always pancakes taste best when they're vanilla flavored, in my opinion. So I do a scoop of bum protein. You just go to them. Stand up right now. I do a scoop of sun fiber. Don't ask what this shit is, it's from Courtney. But fiber to help you poop. Do a scoop of glutamine, great for the gut. Keep your gut healthy and your body will be healthy. Dash of extra vanilla flavoring for deliciousness. And then some salt. तो अभी तक क्या क्या हुआ, तो इट्स लाइक अ सिंपल रेसिपी जहाँ पे ही इज यूजिंग ओट्स के पैनकेक बनाए जाते हैं। मैं हमने इस चैनल पे बहुत बड़ी बनाए हैं। इट्स सिंपल। इंडिया में अगर आपको ढूंढना हो न्यूट्री ब्लेंड करके आता है, वंडर शेफ का आता है, तो बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। वंडर शेफ वाला जस्ट डज द जॉब फाइन, परफेक्टली फाइन। Amazon पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो ओट्स यूज किए हैं, उसके बाद एग्स यूज किए हैं, एग वाइट्स यूज किए। अब मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ क्योंकि एग वाइट्स नॉर्मली मार्केट में आना शुरू हो रहे हैं, तो आई वुड स्टिल से कि जो आपके एग वाइट्स हैं वो आप खुद से बना के यूज कीजिए। अब व्हाट आई वुड वांट कि जितना प्लास्टिक या इस टाइप की कोई भी चीज है आपका खाना टच ना हो उतना अच्छा, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक जो है दे काइंड ऑफ सीप इनटू योर फूड। तो आई वुड से गुड ओल्ड एग वाइट स्टिल फाइन, लेकिन जो एग योक्स हैं अपने, अगर आप कुत्तों के शौकीन नहीं तो बिल्लियों को खिलाइए, लेकिन किसी ना किसी को जरूर खिलाइए। उसको डस्टबिन या कहीं ना फेंके, बड़ा दुख होता है जब ऐसी चीजें लोग करते हैं। अब एक चीज अगर आप देखोगे तो इसमें क्या चीज है कि जो क्रिस हैं इन्होंने पहले अंडे डाले, उसके बाद इन्होंने वे प्रोटीन भी डाला क्योंकि ही हैज ओन लाइन ऑफ सीबम प्रोटीन। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब एज अ नेचुरल एथलीट और एज एन एनहांस्ड एथलीट आपको देखना क्या है कि जो प्रोटीन है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर ग्रोथ का। तो अगर एग्स अच्छे खासे एक में है, ओट्स में थोड़ा प्रोटीन है, तो एडिशनल और प्रोटीन डालने का उतना खास कोई मतलब बनता नहीं फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, सो डोंट गेट ऑफेंडेड कि सीबम ने लिखा है तो हाउ कैन यू से कि ऐसा नहीं। लेकिन जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली जो फ्रीक्वेंट स्पाइक्स ऑफ प्रोटीन है या फ्रीक्वेंट जो प्रोटीन के मील्स हैं वो एमपीएस बढ़ाने में हेल्प करता है। दैट्स प्रीटी मच इट। हाँ, लेकिन उसका एक बड़ा अच्छा टिप था और दो चीजें क्या थी। पहला पार्ट था फाइबर डाला था, फाइबर की जगह आप सीलियम हस्क डालिए। और ये एक टिप मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप वे प्रोटीन शेक पी रहे हो साथ में आप हस्क जरूर डालिए, मतलब इसबगोल जरूर डालिए। और क्यों? लोगों को लगता है कि जो इसबगोल है अगर आप रेगुलरली लोगे तो इससे आपके पेट को आदत पड़ जाएगी। देखिए, इसबगोल एक लैक्सेटिव नहीं है, लैक्सेटिव तरह एक काम करता है। इसबगोल है वो एक्चुअली फाइबर है, मतलब एक प्रीबायोटिक है। तो ये आपके पेट के लिए बहुत ही कमाल है। तो इसके लिए जब भी आप कोई प्रोटीन शेक लेते हो तो उसके साथ इज ऑलवेज गुड टू हैव इसबगोल, क्योंकि प्रोटीन शेक में मोस्टली फाइबर नहीं होता और इसबगोल जो है अगर आप साथ में लोगे तो आपके पेट के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद अब एक और चीज क्रिस का यूज करते हैं वो ग्लूटामीन है। देखिए,
ग्लूटामीन रिकवरी में कोई खास इसका काम है नहीं है, लेकिन पेट के इश्यूज में डेफिनेटली ग्लूटामीन अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तो सम पीपल इट कैन हेल्प। मेरे सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइंट्स हैं जिनको ग्लूटामीन लेने से बड़ा हेल्पफुल होता है, वो अगर रनर है। तो मैंने ये देखा था कि रन कंप्लीट करने के बाद, लाइक फुल मैराथन की बात कर रहा हूँ, 100 मीटर 200 मीटर रन की बात नहीं कर रहा, तो उसको कंप्लीट करने के बाद बड़े सारे उनको, मेरे रनर्स को ऐसा होता था कि कोल्ड शुरू हो जाता था, क्योंकि जो इतनी रनिंग होती है बॉडी बहुत स्ट्रेस डालती है। उस केस में ग्लूटामीन हेल्प करती है। लेकिन अगर रेगुलरली ग्लूटामीन ले रहे हो रिकवरी के लिए, आपका पेट बिल्कुल ठीक है, आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। और थोड़ा सा इन्होंने वनीला फ्लेवरिंग डाल दिया। वनीला फ्लेवरिंग की एक बात बताता हूँ, अगर इफ यू कैन गेट लाइक रियली हाई क्वालिटी वनीला फ्लेवरिंग, लाइक ओरिजिनल वनीला जो प्लांट होता है उससे, दैट्स अमेजिंग। हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा रहता है और आपके टेस्ट भी बड़ा अच्छा देता है। आर्टिफिशियल वनीला फ्लेवरिंग थोड़ा अवॉइड कीजिए। For a little extra flavor and some sodium gains. Pumpkin. I would do this and then I forget something. I personally like to do 60-70 grams of pumpkin in there. There's like literally no calories in this stuff. If you're like on a diet and you're weighing yourself out, you can substitute like 5 grams of oats, and it's equivalent to like almost 40 grams of pumpkin because it's just like fiber in there. But that's everything in here. I personally am weird and I'd rather thin pancakes and more volume, so I put a little bit of water in with this, just like a random amount of water. It makes them a little thin. अब क्रिस ने थोड़ा इसमें कैंड पंपकिन डाला। हमारे यहाँ फ्रेश पंपकिन आपको आराम से मिल जाएगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और कैंड पंपकिन अननेसेसरली बहुत महंगा होता है, क्योंकि इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है कैंड पंपकिन, तो इंपोर्ट होकर आता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती एंड इट्स लाइक रिडिकुलसली एक्सपेंसिव फॉर नो रीजन। अब एक और चीज कर रहे हैं, क्या इन्होंने पूरा ये अपना पैनकेक बनाया है। देखो, इसको अगर सेम रेसिपी को बल्किंग पे लेना हो तो आप शेक बना के पी जाओ, बड़े जल्दी पी जाओगे, जल्दी भूख भी लग जाएगी। लेकिन अब कटिंग पे ले रहे हो तो आप चाहते हो खाने की वॉल्यूम ज्यादा हो ताकि भूख ज्यादा टाइम तक लगे ना, फाइबर थोड़ा ज्यादा हो। तो इट्स लाइक अ ग्रेट वे कि सेम रेसिपी या सेम तरीका जो है वो बल्किंग कटिंग में कैसा डिफर करता है। Almond butter. 19, close enough. Batter also tastes fire. अब एक और चीज क्या इन्होंने, जब पैनकेक्स खत्म हुए उसके ऊपर आलमंड बटर यूज किया। पीनट बटर जो कि बहुत पॉपुलर हो गई रिसेंट टाइम्स में, इट्स फाइन, लेकिन इट्स नॉट द मोस्ट हेल्दीएस्ट थिंग आउट देयर। लाइक अ स्कूप और 2 ऑप्स पीनट बटर इज फाइन, क्योंकि ओमेगा 6 में बहुत रिच होती है और हमारी डाइट ओवरऑल ओमेगा 6 में बहुत ज्यादा, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है। तो आलमंड बटर इज अ ग्रेट थिंग। आलमंड बटर ना भी हो, डायरेक्टली आलमंड लीजिए। जैसे लोग कई बार आलमंड मिल्क लेते हैं, तो दैट्स अ स्टोरी फॉर सम अदर वीडियो, लेकिन आलमंड मिल्क इज नथिंग। लेकिन सिर्फ भिगोए हुए बादाम और उनको आप पीस दीजिए, जो पानी निकलता है, दैट्स व्हाट आलमंड मिल्क इज। Lunchroom, and I'll tell you guys what I'm eating there. It's my beautiful meal, very extravagant. Chicken, rice, and some green beans. Green beans always baked in the oven. I don't know why they taste way better like that. And that's it. I've been hardcore this year. सेकंड मील सिंपल है, चिकन, राइस और ग्रीन बीन्स। सिंपल, ये तो आई गेस डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन टू। Alright, let's do that. I already explained what I'm eating. Nothing exciting. My next meal is the exact same. So I will see you for that meal. Meal number 3. I like to eat 3 meals before I train. This is just like my work office meal. Get me through the day. Like some pre-workout. So I'll see you then. बस एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर इफ यू कैरिंग योर मील्स, मेक श्योर कि प्लास्टिक ना हो पूरा का पूरा। आप स्टील के या फिर ग्लास के कंटेनर्स में लें। और जो चम्मच हो वो प्लास्टिक का चम्मच ना हो यार, सिंपल अपना स्टील का चम्मच आराम से कैरी कर सकते, तो उससे माइक्रो प्लास्टिक्स खाने में कम रहे, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स ये बहुत खतरनाक चीज है। देखते हैं अगला मील क्या। Next meal is a bottle of water. Very crucial. Stay hydrated. Don't be thirsty. Don't be a thirsty hoe. Drink water. Alright, so this is meal number 3. This is my white fishy fish meal. Release fishy fish of the fishy fish. If you remember that quote, you're a real one. But this is typically my pre-workout, but today's my rest day, so I am not going to be working out. But I have the exact same diet, rest days and training days. So this is 200 grams of white fish. I like to do haddock. This is haddock or cod? It's haddock. Cod. We typically do haddock or cod because you can actually get wild caught haddock or cod, whereas most other fish are farmed, especially tilapia, just no good, so don't eat that shit. Get wild caught fish if you can. If not, you'll survive. But try. And so I have this, and then I fry it on the pan, and I add a little bit of rice, and that's all she wrote. सो मोस्टली इट्स लाइक चिकन एंड फिश एंड राइस इनका अगला मील है। तो इसमें एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ, वो ये कि जैसे अगर आप क्रिस की वीडियोस देखोगे या किसी बाहर वाले बॉडी बिल्डर की वीडियो देखोगे, सैमन बहुत पॉपुलर है, टिलापिया बहुत पॉपुलर है, लेकिन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। खासकर इंडिया की इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, हमारे पास नेचुरली इतनी बढ़िया फिशेज हैं। तो आई वुड से कि फिशेज के मामले में लोकल फिशेज क्या फूड्स के मामले लोकल सीजनल जो आपको सबसे अच्छी फिश मिलती है वही लें। ऐसा नहीं कि कोई 7 समुंदर पार फिश आ रही है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी। रिमेंबर, लोकल एंड सीजनल, लाइक दिस इज द बेस्ट फूड यू कैन गेट। और क्रिस ने पहली बात की थी हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन इजंट जस्ट अबाउट वाटर, इट्स अबाउट गेटिंग ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स। वो भी चीज आपके दिमाग में रहे। Alright, so finish it off with some beautiful shredded lettuce in order to get shredded. This stuff adds volume, tastes good, crunch, it's beautiful. दिस अगेन इज अ ग्रेट टिप कि अगर आपका खाने की वॉल्यूम कम लग रही है, पोर लॉट ऑफ सैलड अलोंग साइड, और सैलड इज फाइन। आपका खीरा, टमाटर, प्याज, दिस ऑल वर्क्स फाइन। यू डोंट नीड सम फैंसी सैलड आपके प्लेट में जस्ट हैव गुड रिजल्ट्स। ये सारी चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन अगेन लोकल सीजनल होना चाहिए। तो खीरा टमाटर वर्क्स परफेक्टली फाइन। यू डोंट नीड लेटेस और समथिंग, बिकॉज लोकली हमारे पास उतनी अच्छी होती नहीं है, और जो आती है इम्पोर्ट होकर आती है, वी डोंट नीड दैट।
cold, so I want something warm. So I put on a sweater and I made some potatoes. And this is 350 grams of raw weight potato. I weigh most stuff cooked, but my potato, you never know how much they're going to shrink and everything, especially in the air fryer. So I weigh all my potato raw, and having an air fryer is a lifesaver because you can just cook it in like 20 minutes super quick. 350 grams of raw weight potato, which is about 56 grams of carbs, and then another 200 grams of white fish. So the way Hani operates with all this stuff is he calculates the carbs from direct carb sources, the proteins from direct protein sources, and the fats from wherever the fats are coming from, but mainly focusing on the protein and the carbs and subtracting stuff along from there. So we're not counting the protein that you get from like oats and the little bits in rice and everything. So this is Okay, so this is like typical Hani Rambod. This is what he does. Hani Rambod coach है क्रिस के. तो ये मील क्या है? सिंपली यू हैव पोटेटोज, यू हैव फिश. और इसमें एक अच्छा टिप क्या है, अगर आप में से बड़े सारे लोग जो बॉडी बिल्डिंग एंथुजियास्ट हैं, अगर आपने एयर फ्राई यूज़ नहीं किया तो आई सजेस्ट कि आप एक भी ट्राई करें, क्योंकि चिकन बनाना है, फिश बनाना है, आलू बनाने मस्त बनते हैं और बहुत कम मेहनत लगती है. और एक चीज़ आलूओं को ना, मैंने देखा जब लोग कट करते हैं ज़बरदस्ती उसको डीमोनाइज किया हुआ है कि आलू खाओगे तो मोटे हो जाओगे. आलू की बेस्ट पता क्या है? सेशियाइटी इंडेक्स वो 300-350 के आसपास है. तो आलू खा के यू फील सो फुल. तो आई वुड से कि बल्किंग टाइम पे उतनी बढ़िया चीज़ नहीं है जितनी कटिंग टाइम पे. तो आई वुड से कटिंग टाइम पे आलू जरूर खाएं, क्योंकि 200 ग्राम आलू खाने के बाद यूल फील सेशिएटेड इनफ और आपका फिर से बिंज करने का मन नहीं करेगा. दिस इज लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एंड कैलोरीज आर सुपर लो. और बाकी एयर फ्राई के रेसिपीज के लिए हमारे संजीव कपूर साहब या बराड़ साहब, उनकी बहुत सारी रेसिपीज होंगी, तो डू चेक देम आउट. typically my post-workout meal. Very delicious. I've heard somewhere that if you take your potatoes, cook them, let them cool down, and then cook them again or reheat them, it actually lowers the glycemic index and it's less likely to spike your blood sugar. So I try to do that when I have time to do it, but normally I just take them to the air fryer and they taste better like that. So I'm not perfect, but this is meal number. सो दिस ये जो क्रिस ने बात की अभी कि अगर आप पोटेटोज को पहले गर्म करो, फिर ठंडा करो, गर्म करो, ठंडा करो, इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है. समथिंग कॉल्ड रेजिस्टेंट स्टार्च जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें. अब इस वीडियो के ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो मैं इसमें बताना नहीं चाहता, लेकिन आई मेक अ फ्यूचर वीडियो ऑन दिस कि व्हाट रेजिस्टेंट स्टार्च इज. इन केस यू वांट मी टू मेक इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. लेकिन दिस इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंट स्टार्च. Not this, but I want to enjoy some ice cream. So I'm going to blend up the protein. Drop that whole thing on the ground. All right, so typically, like I said, this is my post-workout shake, but I'm resting today. But even on rest days, you got to hit that protein goal, especially on rest days almost, because rest days are for recovery, not just for nothingness. So I'm making sure I still get all my protein in. Sometimes I think I'll get to the point where I'll have like a low day, a low carb day on my rest days, but we're not quite there yet. So I have 2 scoops of protein. I fill up like a good amount of ice and some water. If you're not on prep and you do this with almond milk or some kind of milk, probably not dairy milk because I don't believe in dairy milk, then it blends up a lot smoother. But getting up in a shake, 50 grams of protein, and turn it into some delicious ice cream. Oh, so protein ice cream, it's very easy to make. कोई भी अच्छा good tasting protein, some ice, maybe some almond milk here and there, थोड़े nuts डाले and you have like great protein ice cream. So yes, अच्छा idea है to keep you mentally also dialed in. क्योंकि cutting के time पे ऐसा नहीं होना चाहिए बस खाना खाना खाना, कब आएगा तो क्या होगा, diet हो नहीं पाएगी. लेकिन इस type के hacks बीच में हो तो this can definitely help. So nice tip. Alright, so this is the final meal of the day. My one fat protein source. I guess you call it, I either have beef or salmon. Typically, I've been having a lot of salmon lately. Just get the omegas in, be nice and healthy before bed. But I like to chop it up like this before putting it in the microwave. One bite cold, one not. But I think I find it dries the salmon out a little bit less when you're recooking it. So chop it up, heat it up, and then I have some green beans in the air fryer. Get nice and burnt. Burnt veggies are the best veggies. Also, every night, my array. My array of a lot of supplements. I'm having magnesium every night. Can help you relax at night. Can help you go to the bathroom, reduce stress, all the good stuff. And it's just a great mineral to have in your body. So dump in some of this, and it tastes good. Orange flavor, and this is sweetened with stevia, so finish the day off naturally. Hashtag health. And there you have it, final meal of the day, 200 grams of salmon or steak, lean cut of steak or ground bison, whatever I'm feeling that day, a little bit of green beans, aka veggie of choice, some magnesium for Revive, G-Code T-Bum, and that's it for the day. So everything I eat in the day currently, it's a wrap. अब लास्ट मील की बात करते हैं. लास्ट मील में क्या, आई वांटेड समथिंग फैटी, तो उन्होंने 2 मीट्स कंबाइन किए. हैड सम सैमन, बीफ और बाइसन लास्ट मील था. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव सम मटन, लेकिन आई डोंट रिकमेंड कि आप 2 मीट सोर्सेज को कंबाइन करो. काफी लोगों को पेट में दिक्कत हो जाती है. और जैसे एयर फ्रायर की बात थी, तो पहले एयर फ्रायर में बीन्स बना ली, बड़े आराम से बन जाती हैं, टेस्टी होती हैं, क्रंची होती हैं, साथ में वो डाल ली और साथ में उन्होंने मैग्नीशियम लिया. नाउ द थिंग अबाउट मैग्नीशियम इज, आपने देखा होगा बड़े सारे लोग विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करना शुरू हुए हैं आफ्टर कोरोना. और विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में अगर काफी टाइम से विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो मैग्नीशियम जो है वो कम हो जाता है. तो इसके लिए बीच बीच में मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन इज आल्सो ग्रेट टू हैव. जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू है या रात को ढंग से रिलैक्स नहीं कर पाते, तो पुटिंग सम मैग्नीशियम के इन सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हो. गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन.